Question number 7 is from a point on the ground. So there is a point on the ground. कोई भी point हम mark कर लेते हैं. Angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower. तो कोई भी ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप और बॉटम से ग्राउंड तक जो भी है एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है. फिक्स्ड एट, जो ट्रांसमिशन टावर है वो कहाँ पे फिक्स है? टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. तो मतलब पहले हमारे पास कोई बिल्डिंग है. दिस इज माई बिल्डिंग ए बी. बिल्डिंग के ऊपर जो है हमारे पास एक ट्रांसमिशन टावर है, दैट इज सी, BC. So this is C. So BC is the transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. So AB length is 20 meter and the angle of elevation are 45 degree and 60 degree. तो कोई भी point fix करते हैं. Suppose this is the point on the ground. So this will be the horizontal line. From the top of the transmission tower, the angle of elevation is 60 degree, and from the bottom of the transmission tower, the angle of elevation is 45 degree, and this is 60 degree. Again I am repeating, from a point on a ground, the point is this one, that is D. The angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower. Bottom of the transmission tower is B and top of the transmission tower is C. So the angle of elevation of that points B and C, it will be 45 degree and 60 degrees given in the question, and the transmission tower is fixed at the top of a 20 meter high building. So the building is AB. Now we will write what is given and what we will see from the figure. Let AB equals to height of the building, that is 20 meter, and BC equals to transmission tower. Find the height of the tower. So we have to find BC. फाइंड करना है तो इसको लेट कर लेते हैं H, ताकि बार बार लिखने में इजी रहे. आफ्टर दैट नथिंग इज देयर. वन मोर थिंग इज देयर इन द फिगर, दैट फॉर बोथ द एंगल्स, अगर 45 एंगल लेते हो तो भी आपके पास बेस क्या है? AD है. अगर हम 60 डिग्री एंगल लेते हैं तो भी हमारे पास बेस क्या है? AD है. तो मतलब बेस हमारे पास कॉमन है दोनों चीजों में. तो हम जो भी टी रेशियो यूज करेंगे वहां पे क्या करेंगे? AD का यूज करेंगे. AD का यूज करने के बाद यहाँ पे देखते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 20 मीटर और साथ में फाइंड करना है H. तो मतलब हमें साथ में क्या लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ हमें बात करनी है. तो बेस को भी मैं लेट कर लेती हूँ, कुछ x ले लिया सपोज. लेट AD इक्वल्स टू x मीटर. ओके. नाउ इन ट्राइंगल ABD, angle D equals to 60 degree, angle A equals to 90 degree, AB is 20 meter, AD equals to X. So T ratio we will use tan 45 degree equals to AB upon AD, that is AB is 20 upon X, 1 equals to 20 upon X. This implies X equals to 20 meter. Now in triangle 2, in triangle ACD, AC upon AD equals to 20 plus H upon X. Why 20 plus H? क्योंकि AC देखते हैं फिगर से, A से B तक की डिस्टेंस 20 है, B से C तक की डिस्टेंस H है. तो टोटल A से C तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 20 प्लस H. और ये हमारे पास कौन सा T रेशियो होगा? tan ऑफ 60 डिग्री. नेक्स्ट हमारे पास क्या आया? 20 प्लस H, ऊपर X की वैल्यू 20, tan 60 इज √3. यहाँ से 20 प्लस H इक्वल्स टू 20 √3 और
h equals to 20 root 3 minus 20 और h equals to 20 root 3 minus 1 meter. So the answer statement is height of tower is 20 root 3 minus 1 meter. Again, if the value of root 3 is given here, तो हम उसमें put करते हैं, अगर नहीं given तो हम value put नहीं करेंगे. Now, question number 9 is the angle of elevation of top of a building from the foot of a tower is 30 degree. तो हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है और कोई हमारे पास एक टावर है. दोनों चीजें ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर साथ में देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं. Suppose this is my building AB and suppose this is my tower. You can give any name whichever you like. So it is CD. Horizontal line पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं. BC is the horizontal line. After that यहाँ पे लिख भी लेते हैं, let AB equals to building and CD equals to tower. Angle of elevation of the top of a building. Top of the building is A from foot of a tower. So foot of tower क्या है यहाँ पे? C. तो A से C तक एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है मेरे पास. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? इज 30 डिग्री. तो यहाँ C पे एंगल कितना बन गया? 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. टॉप ऑफ द टावर इज D. फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. फुट ऑफ द बिल्डिंग इज B. तो B से D तक जो मेरे पास एंगल बना दैट इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. अब टावर मेरे पास 50 मीटर है, यानी कि CD मेरे पास 50 मीटर दे रखा है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको h लेट कर लेते हैं. इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 50 मीटर. जो जो चीजें गिवन थी वो हमने लिख लिया है. इसके बाद प्रोसीड करते हैं. अब हमारे पास कौन से दो ट्राइंगल बने? हमारे पास ट्राइंगल बने ABC जिसमें 30 डिग्री है और BCD जिसमें हमें हाइट दे रखी है 50 डिग्री. एक चीज आप देखोगे तो दोनों ट्राइंगल्स में जो बेस BC है दैट इज द कॉमन. तो मतलब हमें बेस तो लेना ही लेना है. दूसरा, इस वाले ट्राइंगल में AB हाइट फाइंड करनी है तो AB लेनी पड़ेगी, और CD ट्राइंगल में हाइट आपको दे रखी है तो इट मींस हाइट लेना पड़ेगा. तो अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेने से क्या आएगा हमारे पास? T रेशो 10. तो शुरू करते हैं सबसे पहले. इन ट्राइंगल BCD एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड CD इक्वल्स टू 50 मीटर. BC हमें नहीं पता, x लेट कर लेते हैं. इसको भी लिख लेते हैं, लेट BC इक्वल्स टू x मीटर. ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर. तो उसमें फिर आपको क्या करना है? BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ CD अपॉन BC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये हमारे पास क्या बनेगा? tan 60 डिग्री. CD हमारे पास कितना दे रखा है? 50. BC x और tan 60 हमारे पास कितना होगा? √3. तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 अपॉन √3. ठीक है, 50 √3 रखते हैं अभी, क्योंकि ये वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी हमें, तो एक ही बार रैशनलाइज कर लेंगे जब हम h की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है इसमें कि यहाँ पे फाइंड आउट किया और वहां पे नहीं किया, पर हो सकता है कि हमें AB फाइंड करने में भी अंडर रूट की जरूरत पड़े, तो फिर वहीं पे सीधा रैशनलाइज हो जाएगा. नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल C is 30 degree, AB equals to H and BC equals to X equals to 50 upon √3. Now again perpendicular upon base, so it will be AB upon BC equals to tan 30 degree, और
AB is H, BC is 50 upon root 3, tan is 1 upon root 3. ठीक है, और H root 3 upon 50 equals to 1 upon root 3 और H equals to 50 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये रूट 3 को नीचे ले आए, 50 को उधर ले गए, तो ये हमारे पास आ गया 50 अपॉन 3 मीटर। आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन में करना है फ्रैक्शन में कर सकते हो, डेसिमल में करना है डेसिमल में कर सकते हो। फ्रैक्शन मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल में करना है डेसिमल में लिख सकते हो। कहीं पे प्रूव करना आ जाता है तब लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 इज two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road। तो कोई भी रोड ले लेते हैं पहले, ये मैंने B से C तक रोड की विड्थ ले ली है कि रोड का एक साइड B है एक साइड C है, ठीक है। यहाँ पे दो टावर स्टैंडिंग है, तो दिस इज माय फर्स्ट टावर A B और दूसरा टावर हो गया यहाँ से C D, ठीक है। तो यहाँ से C and D. This is my second tower CD. So AB is the first tower, CD is the second tower. उसके बाद क्या बोला है, which is 80 मीटर वाइड, यानी कि रोड कितना वाइड है 80 मीटर, तो रोड इज BC, so BC is 80 मीटर। लिख लेते हैं यहाँ पे जो जो हमें समझ आ रहा है। Let AB is equals to first tower या वन टावर, पोल सॉरी पोल गिवन है यहाँ पे, पोल CD equals to second pole, BC equals to road equals to 80 मीटर। लिख लिया यहाँ तक। From a point between them on road, इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास, तो कहीं पे भी ले लो एक पॉइंट, ये ले लिया मैंने P, दोनों के बीच में एक पॉइंट हो गया P, ठीक है। The angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ऑब्वियसली फर्स्ट पोल मैंने ए बी लिया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका आएगा, एपी का, दैट इज 60 डिग्री। सेकंड मैंने लिया है डी से पी तक, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस, हाइट ऑफ द पोल, तो ए बी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, ए बी नहीं पता सी डी नहीं पता। Find the height of the poles and distances of the point from poles, distances of the point from the pole। तो ये point है ये pole है, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब हमें ये बताना है कि B से P तक डिस्टेंस कितनी है और P से C तक डिस्टेंस कितनी है। ये तो पता है हमें कि 80 मीटर है टोटल, बट उन दोनों को डिवाइड भी करके बताना है, तो साथ में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंसेस of point from poles are BP and CP। so BP भी हमें फाइंड करना है, CP भी हमें फाइंड करना है। ये सब कुछ हमें क्वेश्चन से गिवन था, अब हमें आगे देखना है। अब देखो वही दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, कौन से ट्राइंगल है, ABP जिसमें एंगल 60 डिग्री है, उसके बाद CDP उसमें एंगल है 30 डिग्री। दोनों की हाइट निकालनी है, तो ऑब्वियसली हाइट लेना है हमें साथ में। उसके बाद हमें क्या बताना है, जो बेस है यानी कि जो हमारा रोड है उस पे P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, यही बताना है। बट ना हमें B से P तक की हाइट पता है, ना हमें A से B तक की हाइट पता है। सिमिलरली ना हमें P से C की हाइट पता है और ना ही हमें C से D की हाइट पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, देखते हैं फिर दोनों में क्या रिलेशन आता है। फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABP, AB इक्वल्स टू नहीं पता, BP इक्वल्स टू नहीं पता, एंगल। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, अगर हम B से P तक की डिस्टेंस ले लें
तो P से C तक की डिस्टेंस क्या होगी, 80 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट BP इक्वल्स टू X, दिस इंप्लाइज CP कितना हो जाएगा, 80 माइनस X. So I have taken BP as X and CP equals to 80 minus X. आपकी मर्जी है, आप CP को भी X ले सकते हो और फिर BP उसी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 80 माइनस X हो जाएगा. तो यहाँ पे BP हमने लिख लिया X और एंगल P equals to 60 degree. Now AB upon BP perpendicular upon base हमारे पास क्या बनेगा, tan 60 डिग्री. दिस इंप्लाइज AB हमें नहीं पता, BP is X, tan 60 अगेन कितना होगा हमारे पास, ये T रेशियोज आपको याद होने चाहिए, यह आ जाएगा √3. ठीक है, अब यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दूसरे की फॉर्म में. अब वो देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है हमें, उसी के अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे. ठीक है, तो मैं देखती हूँ AB की वैल्यू, AB इक्वल्स टू √3x, ऐसे ही निकाल लिया. अगर x की जरूरत पड़ेगी तो x को यूज कर लेंगे वहां पे. फिर सेकेंड ट्राइंगल, ट्राइंगल में देखें CDP, तो CD हमें नहीं पता, PC कितना है 80 माइनस x, एंगल P है 30 डिग्री. अगेन परपेंडिकुलर CD अपॉन PC, तो CD अपॉन PC क्या आएगा हमारे पास, tan 30 डिग्री. CD हमें नहीं पता, तो CD एज इट इज अपॉन 80 माइनस x, यहाँ से कितना है हमारे पास, tan 30 इज 1/√3. दिस इंप्लाइज CD इक्वल्स टू 80 माइनस x √3. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन. अब क्या करें आगे, क्या दिख रहा है हमें, एक चीज हमें ये बोला है यहाँ पे, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. ये चीज ध्यान दो, इक्वल हाइट है तो इट मीन्स इन दोनों की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी. AB इक्वल्स टू CD. ठीक है, नाउ AB इक्वल्स टू CD, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो यहां से आएगा √3x इक्वल्स टू 80 माइनस x √3. क्लियर, यहां से √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 80 माइनस x, ये x माइनस है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 80 और 2x इक्वल्स टू 80. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 40. So x इक्वल्स टू 40 मीटर है, therefore BP इक्वल्स टू 40 मीटर and PC equals to 80 minus x, that is also 80 minus 40 equals to 40 मीटर. तो ये दोनों तो आ गए जो हमें फाइंड करने थे. अब 1 और 2 से AB और CD की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. फ्रॉम 1 2 दोनों से क्या आया, AB equals to √3x, यानी कि √3 into 40, रैशनल नंबर आगे लिखते हैं, इरेशनल पीछे, तो ये आ गया 40√3. CD 80 minus x into √3, that is 80 minus 40 into √3 equals to 40√3 मीटर. फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमें पता है AB और CD इक्वल आएगा तो दोनों के डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की, हाइट तो हमें इक्वल दे रखी थी, जो पॉइंट है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे था दोनों से, तो इसलिए दोनों का आंसर सेम आया. क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. कोई भी हमारे पास बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री. तो एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, तो पहले मैं बिल्डिंग बना लेती हूँ. दिस इज माई बिल्डिंग AB, कोई भी केबल टावर है, सपोज ये केबल टावर है, दिस इज द टावर CE. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
top of a cable tower is 60 degree. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई यहाँ पे B से C तक. B से C तक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और A से E तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इधर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी. सपोज दिस इज D. ठीक है. So this angle of elevation is 60 degree. Now angle of depression of its foot is 45 degree. किसका फुट? केबल टावर का फुट. जो केबल टावर का फुट है उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका कितना आ रहा है? 45 डिग्री. तो यहां से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया? 45 डिग्री. ठीक है, दोबारा से रीड करते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये हमारे पास है 7 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60. इस पॉइंट से ई पॉइंट तक जो भी टॉप था हमारे पास टावर का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके फुट तक, दैट इज द 45 डिग्री. दोनों चीजें हमें गिवन है. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर का मतलब हमें C से E तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं. AB इक्वल्स टू बिल्डिंग. बिल्डिंग कितनी लेंथ है हमारे पास? 7 मीटर. CD इक्वल्स टू टावर. हमें नहीं, सॉरी CD नहीं, CE इज द टावर. हमें नहीं पता तो फाइंड आउट करेंगे. ऑल्सो AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 7 मीटर. इसके अलावा और कुछ गिवन है? कुछ नहीं गिवन. एंगल्स गिवन है, वो भी लिख लेते हैं. एंगल EAD इक्वल्स टू 60 डिग्री. एंगल DAC इक्वल्स टू 45 डिग्री. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. किससे? एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमारे पास एक चीज हमें पता होती है. एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा कौन सी थ्योरम यूज होती है? दैट देयर आर टू पैरेलल लाइंस and a transversal is cutting them. So the angle formed, alternate interior angles are equal. So DAC equals to angle ACB equals to 45 degree. Reason being alternate interior angle. ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पता. अब स्टार्ट कर देते हैं ट्राइंगल से. कैसे स्टार्ट करेंगे? अब हमें पता है फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास जिसमें एंगल 60 डिग्री है, और सेकंड ट्राइंगल जिसमें हमारे पास एंगल कितना है? 45 डिग्री. अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं, फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC, देखो AB हमें गिवन है, BC हमें नहीं पता, तो हम BC फाइंड करेंगे. AB अपॉन BC इक्वल्स टू tan 45 डिग्री. AB is 7 upon BC equals to 1. This implies BC equals to 7 meter. ठीक है, अब सेकेंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल AED, जो AD है वो BC के इक्वल होगा. कितना हो जाएगा? 7 मीटर. ED हमें नहीं पता, ED हमें फाइंड करना है. सो ED अपॉन AD अगेन इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. This implies ED upon 7 equals to under root 3. क्योंकि tan 60 क्या होता है? root 3. This implies ED equals to 7 root 3. ED is 7 root 3 and CD is 7. Therefore, height of tower equals to, total height is CE, but CE can be break as CD plus ED. CD is 7 meter, ED is 7 root 3 meter, or 7 common, 1 plus root 3 meter. So it is the height of the tower.